for your in with your own on your own subjects. So I think first we'll try to understand what is blueprint, and then I'll give one assignment or a small assignment to prepare a blueprint of your subject as per your choices. So first, okay, I'm sharing the screen. I'll try to, if you have a questions, you want to share anything, you can share with me. Mm. Yeah, yeah. Just a Ma'am, minute. so basically, after preparing blueprint only, the teachers used to give that paper style to us in school. Mm, yeah. They teachers are preparing the blueprint for their syllabus or their content, and then they are giving the. Then they are preparing the question paper. Actually, Paper style. this is the one of the way to prepare the question paper. और अभी आप पता चल जाएगा आपको Okay. कि why there is a need, why it is necessary, और इसका क्या use है, what is its importance. तो I'll try to explain all these things in through this class. तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि माय सब्जेक्ट इज फिजिक्स, सो आई टुक द दिस फिजिक्स सब्जेक्ट हियर, और एनी सब्जेक्ट you can take either essays, English, or anything. Then a good physics test maybe should be constructed. अगर मैं एक डिजाइन करना चाहती हूँ एक टेस्ट, एक अचीवमेंट टेस्ट, तो how I'll go, what is the procedure, what is the plan, what is the organization of the content, and what aspects I have to keep in mind while preparing this question paper. So yes, I design a test for this. Then I'll put allocation of marks for the different cognitive levels to be tested. So मैं cognition levels के different, आपका Bloom taxonomy, you know about this ना? What is Bloom taxonomy? Know about this? Hello students. Yes, ma'am. You know about the Bloom taxonomy? पता है आपको क्या है? We have first, जब से basic Yes, level ma'am. होता तो Yes, knowledge ma'am. level में होता है, that Yes, is, ma'am. है ना, second level is of understanding, Acceptance, third is yes. application, analysis, synthesis, है ना, और अब हमने evaluation को top पे कर दिया, and synthesis is lower than that. पहले हम synthesis को that is get changed. Okay, ठीक है, वो levels आप एक बार देख लेना, तो वो cognitive levels हैं. We are allocating कि हमने knowledge level के, जैसे कि I'll ask the question कि give the definition of, जैसे the facts मैं कुछ पूछ रही हूँ, तो that is a basic level, जिसमें हम बिल्कुल थियरी के बारे में पूछते हैं, जस्ट एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं, फॉर्मूला के बारे में पूछते हैं, वो कॉग्निटिव नॉलेज लेवल क्या है आपका. फिर हम उसमें अंडरस्टैंडिंग से कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, फिर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डालते हैं क्वेश्चन पेपर में. तो इस तरह से हम डिफरेंट, वी वांट टू चेक द डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू अवर क्वेश्चन पेपर. तो आपने देखा होगा कि पहले इजी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में, फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो शायद क्वेश्चन आपके टफ होते जाते हैं, या कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हार्डली द फ्यू स्टूडेंट्स कैन एबल टू अटेम्प्ट दैट. तो इस तरह के हम डिफरेंट लेवल्स को विल ट्राई टू assess the different levels of the student through our question paper. Then allocation of marks for different chapters and units. अब हम उसमें से मार्क्स डिफरेंट चैप्टर्स जो होते हैं उसमें भी हम मार्क्स अलॉकेट कर देते हैं. ये 10 मार्क्स का चैप्टर है या ये 5 मार्क्स का, इसमें 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा. तो व्हाई? Because depend on the importance of the chapter or importance of the content. Because अगर हाँ वो content बहुत important है तो we'll ask more questions from that chapter and we'll give a good more number of marks to we will assign more marks on for that chapter. For example, अगर light का chapter है, electricity का chapter है, physics की बात कर रही हूँ, तो yes, definitely these are very important chapter, and in other classes also we are making use of these concepts. So definitely teachers ज़्यादा importance देगा and the more marks it will be allocated to these chapters. And then we go for the blueprint of the question paper. फिर हम एक उसका blueprint कैसे बनाते हैं, यानी कि हम short answer रखेंगे उसमें, लॉन्ग आंसर, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमने कल देखे थे, कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे. जैसे कि आपने इफ यू हैव सीन एनी बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, अगर 10th या 12th का कोई पेपर देखा हो तो
जो 10th के पेपर सीबीएसई के होते हैं, तो फर्स्ट आप देखेंगे कि सबसे पहले वन वर्ड वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं, फिर शॉर्ट पे आ जाते हैं, फिर जैसे पहले 1 मार्क के होंगे, फिर 3 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स का होगा, तो डिफरेंट हम मार्क्स से लॉकेट करते हैं, तो उसमें हम ब्लू प्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, देन एलोकेशन ऑफ मार्क्स टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसमें टाइप्स वही हो जाएगी हमारे कि ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे टाइप है कि आपका वेरी शॉर्ट में है कि लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग आंसर्स हैं, तो इस तरह से हम डिफरेंट मार्क्स देते हैं। तो अभी मैं जो आपको दिखा, यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन ना? हेलो हेलो मैम हाँ, मैम ओनली माइक्रोसॉफ्ट टीम दिख रहा है, अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो क्या स्क्रीन पे? अभी नहीं दिख स्क्रीन रहा दिख रही है आपको? लेकिन नो मैम, ओनली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वी कैन सी एक नेम। सेकंड, अच्छा एक सेकंड, हाँ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग में, तो अलग हो जाएगा, यही होगा, एक मिनट, चला गया है। पीडीएफ शेयर करना था, जस्ट अ मिनट, शेयरिंग स्क्रीन, पहले तो दिखा रहा था, हाँ दिखता है वो, वही मुझे नहीं समझ आ रहा, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट। हेलो हेलो, यस मैम। आर यू एबल टू सी द, दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पे? नो मैम। नो मैम। एक मिनट, दिखना तो चाहिए आई थिंक, ये दिखेगा, शेयर नहीं हो रहा है। ये क्या नहीं दिख रहा है, डाउनलोड तो मैंने किया है,
Ma'am, it's visible now. हाँ ठीक है सर, एक मिनट है, फिर से इसी पे ऑन करूं, इसी पे क्लिक करूं क्या? अब तो लाना गया। एक मिनट, ये दूसरी स्क्रीन खुल गई। अभी एक मिनट देखिए, आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, क्लिक करें, नीचे कंटेंट आ जाएगा, यहाँ से शेयर कर दे। कौन सा कंटेंट, ये लेना है? नहीं ये नहीं है अभी, कौन सा अब वो लेना है? दिख नहीं रहा, इसमें पीडीएफ, इसमें ये वाला ना, हम्म। ये दिखाना है आपको। जस्ट 1 मिनट, इसको ओपन करके रखना होता है। उसके बाद आप टीम में चले जाइए, टीम में जाके आप फिर से आ जाएगा। वो कई बार आ रहा है, कई बार नहीं। ये तो हो रहा है कुछ, क्या कुछ खुला है क्या? हाँ, इसको बंद अच्छा, कर। इसको बंद कर, बंद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी लेके भी ना कर देते हैं। ब्राउजर है, अच्छा ये दिख रहा है हमको, वो नहीं दिख रहा है। एक काम करो ना मैडम, ये इसमें खोल दो ना, गूगल में दिख जाएगा, है ना? ये तो ऑप्शन ही नहीं है मैडम। तो क्या करें इसको? इसको गूगल में खोल दो जी मैडम। ये डाउनलोड इसी में खुल रहा है, पीडीएफ है। अच्छा, मैंने कभी टीम यूज किया नहीं मैडम, सॉरी फॉर दैट। तो दोबारा करूँ क्या? फिर से बात करिए मैडम, और गूगल पे खोलिए, है ना? गूगल में डाउनलोड करूँ ऐसा? तो पर वो उसी में खुल रहा है। नहीं, आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ डाउनलोड चाहिए, आपको कैसे बोलना। आपका यहाँ, सॉरी, आपका एक डाउनलोड आया ना? बोलिए। हेलो हेलो स्टूडेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You are ma'am. able to see now? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay, fine. So we can see that I already explained about the designing of the test. Here I am taking the 3-4 points are already I explained you. Allocation of marks to different cognitive levels. Second is allocation of marks for different chapters or unit. Then we can say blueprint for the question paper and allocation of marks to various types of questions. ये हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने. देन एलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर द एबिलिटीज टू बी टेस्टेड, वो ये हमारा सभी जो है इट इज रिलेटेड टू द Bloom's taxonomy, related to the knowledge level, comprehension, that is understanding level of the students, the application level, then skills and analysis and synthesis. So these are the different levels we are assessing our for the students in with the help of our question paper. The maximum question is of knowledge and comprehension level, because the students in the class or all the questions, few questions to be attempted by all the students, because all the students are not that level ki they can attempt application or the analysis or the synthesis. So we slowly we are just increasing the level of the our question paper or our questions in the question paper. For example, first is the knowledge level, so we are keeping it 45 marks, and comprehension level is of 26, then application 17, because all the students are of not that aptitude ki they can attempt all the questions related to the application, skills, analysis and synthesis. And my question paper is of total 100 marks. So I have allocated the marks at different levels, cognitive levels हमने देख लिए बच्चों के, and we had put it in the total is 100 marks. Is it clear now? Clear?
हाँ, तो यू कैन सी कि पहले हमने कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से डिफरेंट मार्क्स की, मुझे टोटल नॉलेज लेवल के क्वेश्चन मुझे होने चाहिए 45 मार्क्स के होने चाहिए। फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे आऊंगी तो उसमें से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस होंगे दैट आई कीप इन माय क्वेश्चन पेपर ऑफ 26 मार्क्स। फिर मेरे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे दैट आई कीप फॉर द 17 मार्क्स। Similarly, for skills 6 marks and analysis and synthesis is of 6 marks and total marks is of 100. Is it clear? Now, now I have a types of questions. अब मैं किस तरह के questions रखूंगी वो मैंने decide कर लिया कि in my question paper short answers and the structured that is essay type questions होंगे, long answer, very long answer, और हो सकता है मैं इसमें objective very short भी रख सकती हूँ। One part is इसमें show नहीं किया but we can keep few questions of very short answer। तो मैंने हमने number of questions जो short answers के लिए रखे वो मैंने 17 रख दिया and structured is 4। और उसमें से मैंने इसमें से I had short answer में मैंने कुछ 3 marks के रख दिए, कुछ 2 marks के रख दिए, कुछ 4 marks के या 3 marks के रख दिए। टोटल आई हैव कीप शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट भी अगर इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए तो आई कैन कीप 15 मार्क्स ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर्स। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमने कल बात किया था कि उसमें से मैं 1 वर्ड वाले पूछ लूं या फिर आपसे आई विल आस्क फिल इन द कंप्लीशन टाइप पूछ लूं कुछ क्वेश्चंस, या फिर मैं कुछ एमसीक्यू भी डाल सकती हूँ उसमें। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट हो सकता है, फिर ऐसे टाइप में आ सकता है। ऐसे टाइप में भी वेरी लॉन्ग एंड लॉन्ग आंसर्स हो सकते हैं, उसमें 5 और 7 और 8 मार्क्स डिपेंड ऑन। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया एंड आई हैव गिव द मार्क्स 44 and 56 टू देम एंड टोटल बिकॉज द टोटल मार्क्स तो वही रहेगा 100 चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन। तो ये आप देखें कि मेरा टैली होना चाहिए 100 मार्क्स के। मैंने पहले मैंने नॉलेज लेवल कॉग्निटिव लेवल के लिए मार्क्स डिसाइड कर दिए कि कितने कौन से लेवल के कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे। देन आई डिसाइडेड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, किस तरह के मैं क्वेश्चंस रखूंगी। We had divided the chapters को मार्क्स दे दिया हमने कि मेरे पास हीट का है, लाइट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, साउंड का है, मैकेनिक्स का है। देन आई कीप द मार्क्स फॉर द different chapters. Are you understanding the things now? Hello? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. you can see on the screen कि हमने we had chapter wise we decide the marks, क्योंकि मुझे पता है कि mechanics में I have different it's a long chapter and many concepts are very important for the student, तो I keep it of 38 marks। और mechanics में कुछ सब टॉपिक्स भी हो सकते हैं। देन आई कीप साउंड को मैंने थोड़ा कम दिया, दैट इज 11, हीट 12। देन अगेन इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत सारे डिफरेंट वो होते हैं, तो वी कीप इट ऑफ 24। बट मार्क्स टोटल मार्क्स हमारे हमेशा टैली होना चाहिए, क्योंकि टोटल मार्क्स तो वही रहेगा कि आपने 100 का पेपर बनाना, तो चाहे आप नॉलेज लेवल कॉग्निटिव लेवल देखें तो भी 100 मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखें, देन इट इज टोटल इज 100 एंड व्हेन वी आर allocating the marks then again it is of 100 marks। तो ये जो आपका टोटल है वो हमेशा टैली होना चाहिए। तो हमने इस तरह से मार्क्स allocate कर दिया एंड वी हैव a very organized way of preparing the question। मुझे पता है मैंने मैकेनिक्स में से I have to take the questions of 38 marks of different type of questions like short, very short or the essay type questions, and again I have to keep the understanding level में कितने पूछने हैं, क्योंकि मैंने तो पूरे सभी चैप्टर में से टोटल मैंने अभी देखा तो मैंने 45 मार्क्स का नॉलेज लेवल रखा है, तो मैं मैकेनिक्स में से कितना नॉलेज लेवल का पूछूंगी दैट आई हैव टू डिसाइड। अभी आगे हम देखते हैं। Here again I have decided this is the blueprint। मैंने पहले डिसीजन ले लिया कि this is allocation of marks। Now finally I prepared a blueprint for the question paper for the test। Here I decided now short answer and structure, short answer structure इसने 2 ही कैटेगरी ली हैं। वी कैन टेक 3-4 कैटेगरी, वेरी शॉर्ट की भी ले सकते हैं एंड ऐसे टाइप की लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी ले सकते हैं ऐसे टाइप। तो हमने इसने ही हैड मैकेनिक्स को उसने कैसे किया कि नॉलेज लेवल में 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर एंड स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज 14 मार्क्स।
knowledge level में, but in the comprehension level he asked 3 questions of short and 6 questions of essay type या structured. फिर हम बोलेंगे कि application level में 3 and he is not asking from the skills, ये कुछ भी नहीं पूछना है, and analysis and synthesis में again 3 marks he has joined, and total क्योंकि mechanics को we had given the 38 marks, अभी आपने ऊपर देखा होगा, तो मुझे ये 38 marks यहाँ पूरे करने, क्योंकि mechanics chapter को I have given the 38 marks. Is it clear now? Clear to you? Yes, ma'am. हेलो, हाँ आप देख सकते हैं. तो इस तरह से हमको टैली भी करना है कि द मार्क्स आई हैड allocated टू मैकेनिक्स चैप्टर इज टू बी कंप्लीटेड विद द शॉर्ट आंसर एंड राइट स्ट्रक्चर्ड आंसर. और इसमें आप मैंने बोला कि इसने 2 कैटेगरी बनाई है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, आप 3 कैटेगरी भी बना सकते हो. उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर, MCQ कुछ डाल सकते हैं. यू कैन पुट some one word answers or you can completion type question answers भी आप डाल सकते हैं. Similarly we go for the next chapter. उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब लेवल कंप्लीट करने, in any level you can allocate different marks. तो short answer ही पूछ रहे हैं ये पूरे sound chapter में. 5 उसने नॉलेज लेवल के रखे हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल के 3 एंड एनालिसिस, क्योंकि ये टोटली हमारा जो है वो 11 मार्क्स का पेपर, हमने इस चैप्टर को 11 मार्क्स दिए, एलोकेट किए थे. देन इट इज द टोटल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ 11 में एंड ऑल आर द शॉर्ट आंसर्स. तो आप इस तरह से अपना डिवीजन कर सकते हैं, एंड डिवीजन करने के बाद you are very much clear कि how much questions I have to prepare, which type of question is to be prepared from the particular chapter, and how which level I have to ask, and on which level I have to ask more questions from the students. So these are the different level of questions like 3, 5, 7, 6, 3, 3. हमने देखा कि knowledge level में short answers के ज़्यादा पूछ रहे हैं, and again we have to tally this with this, क्योंकि हमने जितने marks allocate किए हैं particular chapter को, that should be matched with the total. Is it clear? दिख रहा है? हाँ, तो हमारे total हमें वो मार्क्स दिखने चाहिए, दैट इज द 100 टोटल 100 हो जाए, 38, 11 जो हमने वे ऑफ कीपिंग इट. फिर इसमें भी जो टोटल हमारा नीचे आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू 100, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्वेश्चंस को हम जितने मार्क्स डिसाइड किए हैं, हमारा ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके 90 टोटल 90 आ रहा है और ऊपर आपका 100 आ रहा है. इट शुड नॉट बी देयर. फाइन. So the total should be matched with the type of questions, with the cognitive level, or with the marks assigned to the different topics of the chapter. Different chapters को जितने भी आपने locate किए. ठीक है? I think things are clear to you. Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पेपर, आई एम गिविंग वन असाइनमेंट, यू प्रिपेयर ए क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट फॉर ए क्वेश्चन पेपर एंड प्रिपेयर वन, मेरे को जस्ट पोस्ट इट, और जब आपका हो जाए देन ट्राई टू शो मी ऑन दी इन माय क्लास, और मैं पोस्ट करवा लूँगी ऐसा हो तो. So it is, I think you can prepare a blueprint for your question paper with the help of this concept. Is it clear? Clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो I think अभी इसमें कुछ पूछना है आपको, तो you can ask questions कि हम किस तरह से, अगर एक टेस्ट को हमको डिजाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें, क्या हमें किस तरह से, किस वे से, एंड हाउ आई हैव टू प्लान टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेपर, व्हाट थिंग्स आई हैव टू कीप इन माइंड, एंड हाउ आई हैव टू प्रोसीड फॉर प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर द क्वेश्चन पेपर. तो कॉग्निटिव लेवल का ध्यान रखना है आपको, चैप्टर वाइज मार्क्स का ध्यान रखना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का याद रखना है, and in this way you can prepare a blueprint for the question paper. Is it clear to you everything? और इसको देख, ब्लूप्रिंट बनाने से पहले you just take a look for the Bloom taxonomy के जो different level हैं, cognitive level, you just try to do that. एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लेना, because these are very important.
and to prepare a question paper. वो आपके हर जगह काम आएंगे. तो you just make your concepts clear about the Bloom taxonomy. Fine. Yes, ma'am. हाँ, तो I am. You have a class at 11:45. Yes, ma'am. Okay, so I have to complete one more topic with you, that is criteria or the for the good examination or good test. What are the characteristics of the good test? वैसे हमने बहुत चीजें तो objective type में test किया है, लेकिन okay, you have another lecture also after 5 minutes. तो ये पूरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि it will be too hectic. So tomorrow we will keep the same class at same time. Yes, okay, ma'am. Yes, ma'am. 11 o'clock अगर मैं रख लूँ तो क्योंकि वैसे tomorrow you have a lecture also, but we have to go for the election duty में हमें we have called for a meeting. तो शायद मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगा because the time is clashing with that. I have to reach there at 2:30. तो maybe तो मैं 11 o'clock I'll keep my lecture. Is it clear? Hello? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, तो हम लोग कल रख लेते हैं 11 सेम टाइम. तो उसमें क्या होगा कि I'll complete my unit, and if you want to ask any questions related to this topic, you can and tomorrow you can show the blueprint of your test, any test of your subject, and prepare that and bring it in tomorrow's class at 11 o'clock. So I'll write a message on the WhatsApp also regarding this, which way I have scheduled my class for tomorrow. But or you will get a message from the teams also related to this. Fine. हेलो मैम. Yes, हाँ ma'am. बोलिए. Okay. Yeah. हाँ मैम, ये ब्लूप्रिंट आप व्हाट्सएप या ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो हमें थोड़ा आइडिया मिले कैसे करना है. अच्छा, इसी में कर देती हूँ मैं, टीम्स में कर देती हूँ ऐसा हो तो. ओके मैम. ठीक है, आप Yeah, देख ma'am. लीजिएगा. बस मैं आपको सारा ही मटेरियल देने वाली हूँ, पर टुमारो इफ यू वांट टू प्रिपेयर आई विल कीप दिस ऑन द आई अपलोड दिस पीडीएफ इन टीम्स. ठीक है. श्योर मैम. हाँ, तो ठीक है, आप भी एक प्रिपेयर करेंगे तो यू विल गेट यू हैव अ मोर क्लैरिटी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. तो एक बार बनाएंगे अपने हाथ से तो यू विल बी वेल वर्स्ड विद द थिंग एंड द काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू आर फेसिंग इन प्रिपेयरिंग, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी रिलेटेड टू दिस. फाइन. Okay, ma'am. हाँ, तो मैं आई एम जस्ट आई विल कीप वन मोर क्लास फॉर टुमारो. देखती हूँ टाइम क्या होगा. आई विल लेट यू नो एंड यू विल get a message from teams also related to this, but tomorrow I am winding up my unit, so any questions related to the whole unit you can ask. After that next unit will be start. Fine. So tomorrow will be the last lecture of mine. Okay, so I'm ending my meeting at this point only. So tomorrow we will meet again and schedule will be given to you later. Fine. Okay, bye-bye. Good day to all of you. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am.